Hello students, in this session I will discuss important properties of definite integrals. So let us start with property number 1. A to B, any function dx is equal to A to B, same function ft विथ चेंज वेरिएबल t. तो अगर हम x की जगह किसी फंक्शन में वेरिएबल t लेंगे विद इन द सेम लिमिट्स, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो जो है उस फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी. सेकेंड प्रॉपर्टी, a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन. सो नाउ द लिमिट विल इंटरचेंज, लोअर लिमिट बिकम्स द अपर लिमिट एंड अपर लिमिट बिकम्स द लोअर लिमिट, एफ एक्स डी एक्स. प्रॉपर्टी 3, a to b f x dx, there is an intermediate point between a and b, there is a point c lying between a and b, that is, we can say c is greater than a but less than b. Then from a to c, definite integral from a to c f x dx plus from c to b f x dx. यानी कि अगर कोई इंटरमीडिएट पॉइंट c है तो डेफिनेट इंटीग्रल हम कैलकुलेट करेंगे a से c तक और फिर c से b पॉइंट तक. प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम जो है a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू b f और x को रिप्लेस कर देंगे a प्लस b माइनस x से dx. यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ ए फंक्शन इज डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल 0 to a, देन 0 to a f x dx, this function will have the same value as the function f a minus x dx within the same limits 0 to a. यानी कि फंक्शन में अगर आप x की जगह a माइनस एक्स पुट करने के बाद जो फंक्शन बनाएंगे उसमें 0 to a लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, फ्रॉम 0 to 2a f x dx is equal to 0 to a f x dx plus 0 to a f 2a minus x dx. Now there are two possibilities here. If f 2a minus x is equal to minus fx, if f 2a minus x is equal to minus fx, that is, in the function if we put replace x by 2a minus x and we get the negative sign, it is equal to minus of fx, then this the value of 0, this function is equal to 0. First case A. Now if f 2a minus x is equal to fx, in that case B part, if f 2a minus x is equal to fx, in that case this function 0 to 2a fx dx is equal to twice 0 to a f x dx, because
if f2a minus x is equal to fx, then we are having the same functions within the same limit, 0 to a fx dx plus 0 to a fx dx, that is twice 0 to a fx dx. Property number 7. Minus a to a, if a function is defined within the closed interval minus a to a, then minus a to a fx dx is equal to 0 to a fx dx plus 0 to a f minus x dx. Now there are two possibilities, if fx is an even function or fx is an odd function. If first case, if f minus x is equal to fx, that is fx is an even function, in that case the value of this function minus a to a fx dx is equal to twice 0 to a fx dx. Because f minus x is equal to fx, that we will be having 0 to a fx dx, 0 to a fx dx, twice 0 to a fx dx. Second case, if f minus x is equal to minus fx, that is fx is an odd function. Odd function. In the first case it is even function, and in the first case it is even function. Then the from minus a to a fx dx minus a to a fx dx is equal to 0. So these were some important properties of definite integral. Now I will solve some of the questions based on these properties. So let us discuss some questions. First, question number 1, evaluate minus 1 to 2 mod x क्यू माइनस एक्स डी एक्स. तो मोड के क्वेश्चंस में हम फंक्शन का सबसे पहले नेचर, अगर फंक्शन के अंदर पॉजिटिव रहता है तो मोड एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और अगर फंक्शन नेगेटिव हो जाता है तो मोड एफ एक्स विल बी इक्वल टू माइनस एफ एक्स. सो लेट अस स्टडी द नेचर ऑफ दिस फंक्शन. सो एफ एक्स हियर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स, और अगर हम एक्स को फैक्टराइज करें एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. अब इस फंक्शन के जो है क्रिटिकल पॉइंट्स हम फाइंड करें, तो अगर फंक्शन का नेचर फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1, इसको हम नंबर लाइन पे इसको पॉइंट्स को लेते हैं. तो पहला पॉइंट है हमारा माइनस 1, एंड देन वी हैव द पॉइंट 0, एंड देन वी हैव द पॉइंट 1. So when the value of x is when the value of x is less than minus 1, तो उस केस में लेस देन माइनस 1 वाला केस यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि वैल्यू माइनस 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है. तो हम इसकी वैल्यू को स्टडी करेंगे. लेट अस मार्क द पॉइंट विद ऑन द राइट साइड ऑफ 1, जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, इसके राइट साइड में ओवरऑल फंक्शन होगा पॉजिटिव. 0 और 1 के बीच में अल्टरनेटली साइन हम पुट करेंगे, प्लस देन दिस इज माइनस, एंड हियर इट इज अगेन प्लस, एंड हियर इट इज माइनस. क्योंकि क्यूबिक इक्वेशंस में अगर हम ये क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क पहले पुट करते हैं नंबर लाइन पे, और सबसे एक्सट्रीम जो पॉइंट होता है राइट साइड पे, उसके राइट साइड पे अगर हम चलेंगे तो फंक्शन ओवरऑल पॉजिटिव. अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी ओवरऑल पॉजिटिव.
और यहाँ पे अगर 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है वैल्यू तो ओवरऑल फंक्शन होगा हमारा नेगेटिव, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ये पॉजिटिव, ये 0 और 1 के बीच में नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और इधर इस तरह से -1 और 0 के बीच में फिर पॉजिटिव। तो अल्टरनेटली ये साइन कन्वेंशन लगाने के बाद अब हम देखेंगे कि f(x) की वैल्यू -1 to 2 को हम ब्रेक कर लेंगे, -1 to 0, 0 to 1 एंड 1 to 2, 2 इज हेयर। तो हम इस फंक्शन को ब्रेकअप करते हैं प्रॉपर्टी यूजिंग द प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती है a to b f(x) dx। इफ देयर इज वन और मोर देन वन इंटरमीडिएट पॉइंट तो हम वहाँ से फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं। हम लिख सकते हैं a to c f(x) dx एंड देन वी ट्रेवल फ्रॉम c to b f(x) dx प्लस c to b f(x) dx। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करें अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो -1 to 2 को हम ब्रेकअप कर सकते हैं। -1 to 2 कोई भी फंक्शन है, मोड f(x) है, तो आपको पता है कि -1 और 2 के बीच में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। -1 to 0, 0 to 1 एंड देन 1 to 2, -1 to 2 मोड फंक्शन है हमारा x³ -x dx। तो हमें इसको ब्रेक करेंगे -1 to 0, -1 to 0 मोड x³ -x dx प्लस देन 0 to 1 x³ -x dx मोड x³ -x dx एंड देन फ्रॉम 1 to 2 दो इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं, तो 1 to 2 मोड x³ -x dx। और अब हमें पता है कि इस पहले वाले -1 to 0 इंटरवल में फंक्शन है पॉजिटिव, तो अगर मोड के अंदर पॉजिटिव आता है तो सेम फंक्शन लिखेंगे। सो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू -1 to 0 मोड f(x) इज इक्वल टू f(x), यानी कि हम लिख सकते हैं x³ -x dx। और फिर इसके बाद वाला हमारा जो फंक्शन है 0 to 1, 0 to 1 में हमारा फंक्शन का नेचर है नेगेटिव, तो मोड ऑफ f(x) इज इक्वल टू माइनस, नेगेटिव है अगर नेचर तो हम नेगेटिव साइन लगा देंगे फंक्शन के आगे, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा फंक्शन हमारा -x³ -x फ्रॉम 0 to 1 dx। और थर्ड केस में 1 to 2 अगेन द फंक्शन इज पॉजिटिव, तो मोड f(x) इज इक्वल टू f(x) आएगा। अगर f(x) नेगेटिव है तो मोड f(x) इज इक्वल टू -f, नेगेटिव साइन लगाएंगे फंक्शन के आगे, प्लस 1 to 2 अगेन द फंक्शन इज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल, सो इट इज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल, तो आप मोड x³ -x को सेम रखेंगे x³ -x dx। नाउ लेट अस इंटीग्रेट एंड सॉल्व द फंक्शन। तो हमारा ये फंक्शन अब आ जाएगा x³ -x को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो x³ का इंटीग्रेशन हुआ x4/4, x4/4 और -x²/2, और इसकी लिमिट्स है हमारी 0 से -1 से लेके और 0 तक प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस साइन आ जाएगा हमारा, बाहर लेंगे माइनस साइन, और ये है हमारा x³ -x, तो x³ -x को हम कर देंगे अगेन x4/4 -x²/2 and the limits are from 0 to 1, and in the third case again it is x4/4 minus x²/2 and the lower limit is of the definite integral is 1, upper limit is 2, 1 to 2. Now putting the values, तो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं x की वैल्यू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, -1 पुट करेंगे -1 raised to the power 4,
अब माइनस का साइन यहाँ लगाएंगे, ज़ीरो, पहले ज़ीरो और माइनस साइन, और माइनस 1 रेज़ टू द पावर 4, दैट इज़ 1/4, and then putting the value equal to -1 here, -1 square, -1 square is +1, तो 1/2। ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया है, माइनस साइन, और यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करने वाले हैं 1 पुट करेंगे तो ये होगा 1/4, और यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1/2, -1/2, तो ये वैल्यू 1 पुट करने पे सॉल्व हो गया। अब हम पुट करेंगे 0 पुट करने पे ओवरऑल 0, तो -0। अब आता है थर्ड ब्रैकेट, और यहाँ फिर हम पुट करेंगे x = 2 रेज़ टू दी पावर 4/4, और यहाँ भी हम x की 2 पुट करेंगे, 2²/2, और फिर माइनस साइन हमारा, और 1 x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 रेज़ टू दी पावर 4, दैट इज़ 1/4 -1/2, और इन सारी वैल्यूज़ को अब हमें करना चाहिए कैलकुलेट। तो यहाँ देखिए 1/4 -1/2 मीन्स -1/4, -1/4 एंड माइनस, दिस इज इक्वल टू 1/4, and in this bracket 1/4 -1/2, 1/4 -1/2 is -1/4, again 1/4 ये वैल्यू। अब आते हैं यहाँ पे 16/4, 16/4 is 4 and 4/2 is 2, तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है 4 - 2, और 4 - 2 and here 1/4 -1/2 is 4 -1/2 is -1/4, minus is again +1/4, तो ये हमारा 1/4 + 1/4 is 1/2, plus 4 - 2 is 2 plus 1/4, that is 4 × 2 = 8 and on taking the LCM 9/4, so 1/2 plus 9/4, और अब हम लेंगे इसका LCM 4, तो 4 है LCM, तो ये आ गया 2 × 2 = 4, 2 + 9, यानी हमारा फाइनल आंसर आ गया 11/4 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, evaluate the definite integral 1 to 4 mod x minus 1 plus mod x minus 2 plus mod x minus 4 dx। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए 1 to 4 mod x minus 1 dx plus 1 to 4 mod x minus 2 dx plus 1 to 4 mod x minus 4 dx। 1 और 4 के बीच में ये फंक्शन हमारा फर्स्ट वाला, तो यहाँ हमें होना चाहिए पॉजिटिव, और यहाँ ये 1 से लेके 4 के बीच में रहेगा फंक्शन हमारा 1 और 4 के बीच में नेगेटिव वैल्यू। तो ये फंक्शन को हम लिख सकते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, 1 to 4 मोड x - 4 को नेगेटिव कर देंगे, -x - 4 dx। तो ये हो गया हमारा फंक्शन का ब्रेकअप। जैसे ही फंक्शन का नेचर चेंज होगा तो मोड फंक्शन में अगर नेगेटिव हो रहा है तो फंक्शन के आगे हम नेगेटिव लगा देंगे। तो यहाँ 1 to 4 में इट विल रिमेन थ्रू आउट दिस इंटरवल, इट विल रिमेन नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव किया है। अब यहाँ देखिए 1 to 4 में ये फर्स्ट वाला हमारा फंक्शन की वैल्यू जो है वो रहेगी पॉजिटिव, तो 1 to 4 में हमने रखा है इसे पॉजिटिव। तो अब इसको अगर हम इंटीग्रेट, और यहाँ हम देखिए यहाँ हम फंक्शन का नेचर और इसको 1 से लेके 2 के बीच में ये रहेगा नेगेटिव, तो यहाँ हम कर दें 1 to 4 x - 1 dx को हमने इंटीग्रेट करें तो x² - x विद इन द लिमिट्स 1 to 4, और यहाँ प्लस ये फंक्शन 1 to 2 के बीच में रहेगा नेगेटिव, तो अगर हम इसके आगे और नेगेटिव लगाएंगे तो x - 2 हो जाएगा 2 - x, सो इट विल बिकम 2 - x dx फ्रॉम
1 to 2, और ये फंक्शन हमारा 2 से 4 के बीच में फिर रहेगा पॉजिटिव, तो इसे लिखेंगे 2 mod x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 dx फ्रॉम 2 to 4, और ये फंक्शन हमारा, इसको हम कर दें नेगेटिव साइन को यहाँ ट्रांसफर, तो 4 माइनस एक्स डी एक्स 1 to 4। अब करते हैं हम इंटीग्रेट, इसको भी एक साथ ही इंटीग्रेट किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। इसको हम लिखते हैं अभी 1 to 4 x माइनस 1 डी एक्स। अब एक साथ इनको इंटीग्रेट करें तो x डी एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर वाई 2 माइनस एक्स फ्रॉम 1 to 4, then this 2x minus x square y 2 from 1 to 2 within the limits 1 to 2 plus x minus 2, that is x square y 2 minus 2x within the limits 2 to 4, और ये यहाँ पे रहेगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 उसका इंटीग्रल, और इसकी लिमिट्स हैं 1 से लेके 4 तक। नाउ अब हमें सॉल्व करना है इनको, तो पहले हम पुट करेंगे यहाँ पे 4, x की वैल्यू हम पुट की 4, तो 4 स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 4 पुटिंग 4 ईयर 16 अपॉन 2 एंड देन माइनस 4, और अब पुट करेंगे यहाँ वैल्यू 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व। अब यहाँ हमने पुट की x की वैल्यू 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2, 4 अपॉन 2 दैट इज़ 4 माइनस 2 ये वैल्यू, और माइनस साइन यहाँ पुट करेंगे 1, तो 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, ये सेकेंड ब्रैकेट हमारा सॉल्व। अब थर्ड ब्रैकेट में x की वैल्यू 4 स्क्वायर 16 बाई 2 यानी 8, और माइनस x की वैल्यू 2 4 जा 8 माइनस 8, यानी ये हो गया हमारा 0, माइनस साइन x की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो ये हुआ 2 स्क्वायर अपॉन 2 4 अपॉन 2 इज 2 माइनस एंड 2 माइनस 4, और अब लास्ट में x की वैल्यू पहले करेंगे पुट 4 और फिर पुट करेंगे 1, तो 4 इंटू 4 इज 16 एंड देन माइनस 16 अपॉन 2 इज 8, 16 माइनस 8, देन माइनस साइन, अब पुट करेंगे 1, तो 4 माइनस 1 बाई 2, 4 माइनस 1 बाई 2 इज 4 माइनस 1 बाई 2। अब इसे करते हैं हम पूरा कैलकुलेट, 16 बाई 2 8 माइनस 4 इज 4 इज इक्वल टू 4, और यहाँ हमने सॉल्व किया 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, ये हो गया देन प्लस साइन 4 माइनस 2 इज 2 एंड 2 माइनस 1 अपॉन 2 इज 3 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2, थर्ड 8 माइनस 8 इज 0 एंड हेयर माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगी ये वैल्यू 0 प्लस 2, और प्लस साइन 16 माइनस 8 इज 8 एंड माइनस 4 माइनस 2 4 जा 8 एंड 1 7 बाई 2। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 4 प्लस 1 बाई 2 प्लस 2 माइनस 3 बाई 2 प्लस 2 प्लस 8 और माइनस 7 बाई 2। सॉल्व करें 4 प्लस 2 6 2 6 एंड 2 8 एंड 8 16 प्लस 1 बाई 2 7 बाई 3 7 बाई 2 एंड 3 बाई 2 10 बाई 2 माइनस 5 16 माइनस 5 प्लस 4 to 6 और 8 14 to 16 बाई 16 4
6 and 2 8 or 8 16, and here minus 5 and plus 1 by 2. 16 minus 5 is 11. 11 plus 1 by 2 means 22 plus 1, 23 upon 2. So this is the final answer of the question. With this question I conclude this session. Like and subscribe my channel for new videos and press the bell icon. Thank you, students.